Hey everyone, in this video we are going to discuss the Codeforces Educational Round 193. So let's start with the first problem. In this problem, we are given that in a card game there are n cards with values 2 to n plus 1. To determine which of two cards with values x or y wins, apply the following rules. If one of the numbers from x and y divides the other, then the smaller value wins. Otherwise, the card with the larger value wins. So what it means is, so let's say if there are two cards with numbers x and y, where x is less than y, then if y is divisible by x, in this case x wins. Else if y does not divide, if x does not divide y, in that case y wins. Okay, means the larger number wins. If x divides y, it means the smaller number wins. Okay, so we need to determine that if there exists a card which wins against every other card. What does it mean is, we need to find if there exists a card I such that the cards numbers are 2, 3, 4 up to, let's say there is some card with number I and n plus 1. Okay, you need to determine that if there exists a card with number I such that this card wins against every other card. What does it mean is, it means that for every j, it means that I wins against every j belongs to 2 to n plus 1, right? Excluding I. Okay, so I के अलावा जितने भी कार्ड हैं नंबर्स फ्रॉम 2 to n plus 1, उन सब के अगेंस्ट ये कार्ड आई जीत जाता है. वी नीड टू डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट सच अ कार्ड आई. If there exists such a card I, then our answer is yes, otherwise our answer is no, right? So to understand this problem, let's take an example of any sample card. Let's say this one 3. Your n is 3. Okay, n is 3. It means you have cards with numbers. You have card with numbers 2, 3 and 4, right? 2 to n plus 1. So does there exist a card which wins against every other card? You will see that 2 cannot be that card. Why? Because if we take 2 and 3, 3 wins, right? So 2 cannot be a possible case. Let's try to check each card. So 2 is not a possible answer, because if we take 2 and 3, 3 wins. Why does 3 win between 2 and 3? Because 2 does not divide 3. If 2 does not divide 3, means if the smaller number does not divide the greater number, in that case the greater number card with the greater number wins. Let's take 3. Does 3 wins against every other card? 3 wins against 2, we have already checked. Does 3 win against 4? No. Between 3 and 4, 4 will win, right? Because 3 does not divide 4. Let's check 4. Does 4 wins against every other card? 4 wins against 3. But if we take 2 and 4, 2 divides 4. In that case, 2 wins. So 4 is also not a card which wins against every other card. So in this particular case, for n equals to 3, our answer will be no,
right? Because we cannot find a card which wins against every other card, right? So if we take an example of, let's say, n equals to 4, let's take an example of n equals to 4. So we have cards with number 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि वेदर देयर एग्जिस्ट ए कार्ड विच विन्स अगेंस्ट एवरी अदर कार्ड। इज सच ए कार्ड, let's first of all check whether 2 is such a card which wins against every other card. You can say that between 2 and 3, 3 wins, so 2 is not that card. Let's check 3. You will say that this is not a valid card. Why? Because between 3 and 4, 4 wins. Let's check 4. You will say that this is also not a good card because between 3 and 4, 4 wins. Now let's check 5. Between 4 and 5, 5 wins. Why? Because 4 does not divide 5. Between 3 and 5, 5 wins. Between 2 and 5, 5 wins. So 4 is a valid card which wins against every other card, right? So in this case our answer will be yes. So okay, so you can also check that our answer is 4 again. Answer is yes against n equals to 4. So how you will check this for a general given array A, right? It's for a given general value of n. How you will check this efficiently? So you can see that value of n is order of 10 to the power 5, right? So definitely you cannot have a solution order of n square, means so in brute force solution, right? अभी के लिए आप कंस्टेंट्स भूल जाओ एक बार के लिए, राइट? सो आप सोचो कैसे सोल्व करोगे, तो आप बोलोगे कि अगर हमें n दे रखा है और हमें कार्ड की वैल्यूज भी पता है 2, 3 अप टू n एंड n+1, अब कार्ड की वैल्यूज भी पता है, तो हम क्या करेंगे? हम ब्रूट फोर्स लगा देंगे। हम क्या करेंगे? हर एक कार्ड i के लिए चेक कर लेंगे, i के अगेंस्ट चेक करेंगे 2 to n+1। अगर ये सबके साथ जीत जाता है एक्सक्लूडिंग आई को छोड़ के बाकी सारे कार्ड के अगेंस्ट अगर जीत जाता है तो हम येस प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज अगर कोई भी आई कार्ड नहीं मिलता विच विंस अगेंस्ट एवरी अदर कार्ड, तो हमारा आंसर नो हो जाएगा, राइट? सो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में चला जाए क्योंकि आप हर एक आई के लिए हर एक जे चेक कर रहे हो, बट ये हमारा पास नहीं होगा, राइट? तो हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसको ऑप्टिमाइज करने से पहले हम एक इधर ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी हो, इधर जब हम टेस्ट के इधर चेक करे थे, आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व करी हो तो आप देख सकते हो कि बिटवीन एवरी 2 कंसेक्यूटिव कार्ड्स, आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव कार्ड अगर सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपका ऑलवेज द कार्ड विद ग्रेटर नंबर विंस। Why is it so? It is because every consecutive pair of integers is a co-prime pair, right? और every co-prime pair आपको पता ही है कि उसके बीच में कोई भी कॉमन डिविजन नहीं होता। इसका मतलब i+1 को डिवाइड नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि i इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, i 1 नहीं है इधर, तो i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब आपको पता लगे ये दोनों को-प्राइम पेयर हैं और 2 को-प्राइम पेयर में से स्मॉलर नंबर कैन नॉट डिवाइड द ग्रेटर नंबर। इट मींस दैट ग्रेटर नंबर विल ऑलवेज विन, राइट? सो इससे आप क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि हर एक कंसेक्यूटिव पेयर में बड़ा नंबर हमेशा जीतेगा। तो इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर हमारा आंसर एग्जिस्ट करता है, आई की वैल्यू जो मैक्सिमम कार्ड की वैल्यू है वही हो सकती है, राइट? इसके अलावा कोई भी छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी आप छोटी वैल्यू लोगे ना तो वो तो जीत नहीं सकता अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट से, राइट?
3 के लिए 4 जीतेगा, 4 के लिए 5 जीतेगा, तो हमारा आई की एक वैलिड वैल्यू हो सकती है ना, तो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कार्ड हो सकती है जो कि 5, दैट इज n+1, n+1 ही हो सकता है। और n+1 भी आप बताओगे n+1 कब हो सकता है? n+1 ओनली तभी हो सकता है जब n+1 एक प्राइम इंटीजर हो, क्योंकि अगर n+1 प्राइम होगा तो इसका कोई भी डिवीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी डिवीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये सब के अगेंस्ट जीत जाएगा। लेट्स से इसका कोई डिवीजर एग्जिस्ट करता है, लेट्स से 3 एग्जिस्ट करता है n+1 का, 3 एग्जिस्ट करता है तो 3 n+1 को डिवाइड कर देगा, इन दैट केस 3 जीत जाएगा, राइट। सो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया? हमारा फाइनल आंसर यही बन गया कि हमारी आई की जो वैल्यू होगी ना वो n+1 हो सकती है इफ एंड ओनली इफ n+1 इज प्राइम, n+1 इज प्राइम। अगर n+1 प्राइम है तो हमारा आंसर येस हो जाएगा, अदरवाइज हमारा आंसर नो हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली थिंग वी नीड टू चेक कि n+1 प्राइम है या नहीं, राइट। सो लेट्स सी द कोड ऑल्सो। कोड में भी हमने यही किया है, n लिया, मैक्सिमम कार्ड की वैल्यू क्या होगी n+1, तो n को 1 से इंक्रीज करा दिया। अब n+1 की न्यू वैल्यू एक्चुअली n+1 है, राइट, n की न्यू वैल्यू n+1 है, राइट, क्योंकि हमने n को 1 से इंक्रीज करा दिया। अब हम क्या चेक करें कि n अगर प्राइम है तो हमारा आंसर येस हो जाएगा, अगर कोई भी डिवीजर एग्जिस्ट करता है n का तो हमारा आंसर नो हो जाएगा। और ये एक्चुअली आपको पता ही है कि आपको डिवीजर इफिशिएंटली चेक करना है, तो कैसे चेक कर सकते हो? ये ऐसे ही चेक कर सकते हो कि अगर कोई भी डिवीजर होगा, वो अगर कोई भी नॉन प्राइम इंटीजर है उसका एक डिवीजर, एटलीस्ट एक डिवीजर आपका लेस देन इक्वल्स टू रूट ऑफ n होगा, राइट। सो वही चेक किया हमने, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया ऑर्डर ऑफ रूट n में, एंड दिस इजिली passes योर constraints, right? So this is how we solve this problem. Let's move to the second problem, that is hypercarp and the control panel. So in this problem, hypercarp is assembling a control panel for a new spaceship. The panel consists of n signal modules arranged in a row. Each module contains a diode of certain color and the color of the ith module is represented by a single integer ai. During testing, it turned out that two adjacent modules of the same color may confuse the pilot. Therefore, HyperCarp wants to keep only some of the modules on the panel so that no adjacent remaining modules have the same color. HyperCarp may remove any number of modules. After that, the remaining modules are shifted together while preserving their relative order. In addition, thanks to a backup connection system, HyperCarp may swap any two adjacent remaining modules at most once. It is not allowed to perform more than one swap or remove modules after the swap. Determine the maximum number of modules HyperCarp can keep on the panel so that no two adjacent modules have the same color. ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको समझ नहीं आया तो लेट मी रीइटरेट इट, एक सिंपल लैंग्वेज में इधर समझा देता हूँ कि इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है ना, सिंपल करके बता रहा हूँ कि आपको एक n इंटीजर दिया है और एक n लेंथ की अरे दे रखी है आपको, a1 a2 a3 a4 अप टू an-1 एंड an। ओके, अब आपको क्या करना है ना कि आप इस अरे पर दो टाइप के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। पहला टाइप का ऑपरेशन क्या है? रिमूव एनी इंटीजर, रिमूव एनी इंटीजर फ्रॉम दिस अरे। ओके, सेकेंड टाइप का ऑपरेशन क्या है? स्वैप एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ai एंड ai+1। अब इस पे एक चीज और है कि आप जो फर्स्ट काइंड ऑफ ऑपरेशन है ना, ये कितनी बार अप्लाई कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। सेकंड ऑपरेशन ये जो है ये सिर्फ एटमोस्ट वंस अप्लाई कर सकते हो आप।
एटमोस्ट वंस कर सकते हो, राइट। अब ये टाइप के ऑपरेशन आपको अप्लाई करने के बाद जो फाइनल अरे बनेगी वो उस पर क्या कंस्ट्रेंट है, ये बोल रहा है कि जो फाइनल अरे बनेगी वो वैलिड तभी होगी जब देयर डज नॉट एग्जिस्ट, जब लेट्स से कोल ए इज गुड, कोल ए गुड, call array a good if there does not exist any pair of consecutive integers equal, right? We will call the final array good if and only if there does not exist any pair, any consecutive pair of integers ai and ai plus 1 equal, right? ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइनल अरे में इक्वल नहीं होना चाहिए, तब आप अरे ए को गुड बोल दोगे। सो प्रॉब्लम यही है, आपको ये दो टाइप के ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और आपको फाइनल अरे जो बनेगी वो गुड बनानी है। और आपको एक चीज और, आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा लेंथ ऑफ द फाइनल अरे, आंसर होगा लेंथ ऑफ द फाइनल अरे, और आपको इसको मैक्सिमाइज कराना है, आपका ये टास्क है, फाइनल अरे की लेंथ को आपको मैक्सिमाइज कराना है। ओके, सो इसको कैसे करोगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम टेस्ट केसेस। अगर ये हम टेस्ट केस लेते हैं तो इधर हम देख सकते हैं कि n और आपको अरे दे रखी है, आप देख सकते हो कि कोई भी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल नहीं है, तो ये तो a तो ऑलरेडी गुड है ना, a ऑलरेडी गुड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6, राइट। फाइनल अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, यही मैक्सिमम पॉसिबल है, राइट। सो इसके लिए आपका आंसर 6 हो जाएगा। इसको लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसको एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसमें हमें सारे नंबर्स इक्वल हैं, तो फाइनल अरे में कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल ना हो, इसके लिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि 1 अकरेंस ऑफ 4 को छोड़ के सबको हम रिमूव कर दें, तो फाइनल अरे आपकी बन जाएगी 4, राइट, ओनली 1 एलिमेंट। सो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, राइट। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता आपका आंसर, क्योंकि 1 से ज़्यादा अगर लोगे तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल हो जाएंगे। अब कोई इंटरेस्टिंग सा केस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टेक दिस वन। आपने ये टेस्ट केस लिया, इसके लिए आंसर फाइंड करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, एक ऑपरेशन में इन दो एलिमेंट्स को स्वैप कर दो, कोई भी एलिमेंट रिमूव मत करो, सिर्फ इन दोनों को स्वैप कर दो, तो आपकी अरे क्या बन जाएगी? अरे ए बन जाएगी 1 2 3 2 3 1। अब ये एक गुड अरे है। क्यों है गुड अरे? एक स्वैप ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद गुड क्यों है? क्योंकि एवरी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर नॉट इक्वल, राइट। कोई भी आप कंसेक्यूटिव इंटीजर देख लो, तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। हमें कोई भी रिमूव ऑपरेशन नहीं अप्लाई करना पड़ा। ओके, सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग केस वेयर वी, सो इसमें इंटरेस्टिंग क्या था कि इनिशियली आपके पास दो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीजर्स इक्वल थे इनिशियल अरे में, और आपको कोई भी इंटीजर रिमूव नहीं करना पड़ा, स्टिल यू आर एबल टू मेक द फाइनल अरे गुड, राइट। वो कैसे किया हमने? स्वैप ऑपरेशन अप्लाई कर दिया इन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पर, 2 और 3 पर।
तो इसलिए हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं करना पड़ा, तो आंसर फाइनल 6 हो गया। एक और केस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला केस लेते हैं। ओके, सो इस केस में हम क्या करेंगे ना, इस केस में भी हम सीधा स्वैप ऑपरेशन लगाएंगे इन दोनों एलिमेंट पर। तो आपकी फाइनल अरे क्या बन जाएगी, 3 1 2 1। इसमें भी आप देख सकते हो कि ये भी एक गुड अरे है। क्यों है गुड अरे, क्योंकि कोई भी आपका कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ओके, सो आपका आंसर इसके लिए भी 4 हो जाएगा। अब आते हैं कि आपको n दे रखा है और एक अरे दे रखी है, इसके लिए जनरल अरे, और आई एम क्वाइट श्योर कि इसका कंस्टेंट काफ़ी हाई होगा। हाँ, 10⁵, 2 इंटू 10⁵, सो लीनियर में हमें सोल्व करना है इसको। सो हाउ विल यू सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब हम यही करते हैं कि जो पहले टेस्ट केस हमने देखे हैं ना, इनमें से कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। देखो, एक तो ये है कि एक बार के लिए सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशन को भूल जाओ, स्वैप को। तो आप मुझे बता सकते हो आंसर क्या होता। हाँ, आप बता सकते हो। आप क्या करते हो उसके लिए, आप उसके लिए ये करते कि भाई इस अरे में हम सिर्फ रिमूव ऑपरेशन लगाते, तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट दिखते ना हमें, तो हम एक अकरेंस उसकी छोड़ देते और बाकी कंसेक्यूटिव अकरेंस जितनी भी होती उस इंटीजर की वो सारी उड़ा देते। फॉर एग्जांपल A2 A3 A4 इक्वल थे, राइट, तो हम A2 को छोड़ देते, मतलब एक अकरेंस को छोड़ देते और A3 A4 को उड़ा देते। तो हम ऐसे सारे एलिमेंट उड़ा देते जो कंसेक्यूटिवली इक्वल होते, और फाइनल अरे में ऑफ कोर्स सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स नॉट इक्वल बचेंगे, तो हमारा वो आंसर, वो फाइनल अरे की लेंथ हमारा आंसर हो जाता। अब एक गड़बड़ कर रहा है, मतलब हमें थोड़ा और सोचने को मजबूर कर रहा है, वो सिर्फ यही ऑपरेशन है, अब स्वैप ऑपरेशन। अब हमने ये स्वैप ऑपरेशन भी डाल दिया, तो ये हमारे आंसर को इम्प्रूव करेगा। मतलब स्वैप ऑपरेशन की हेल्प से हम कुछ कुछ इक्वल पेयर को हम बचा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, आप ये बताओ कि 2 से ज़्यादा अकरेंसी, एक कोई भी एक इंटीजर की 2 से ज़्यादा अकरेंसीज होंगी ना, तो आप उसका तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब कोई भी 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट है, मान लो 2 2 2, उन तीनों को तो आप बचा ही नहीं सकते, राइट। सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट हैं, 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट हैं, उनको ही बचा सकते हो। तो सबसे पहले इसको अरे को हम रिफाइन कर देते हैं। हम रिफाइन क्या करेंगे ना, इस अरे में से सारे, इसको एक क्या करेंगे, रिफाइन कर देंगे सच दैट हम एक अरे बनाएंगे A1 A2 A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश, राइट, AN डैश। इसमें हम क्या मेक श्योर करेंगे कि इसमें कोई भी कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स इक्वल नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, राइट। ओके, एक बार ये आपने कर लिया। अब आप आते हैं अब इस ऑब्जर्वेशन से, अब इस ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, स्वैप ऑपरेशन कैसे हमारे अकरेंसेस को बचा रहा है, कंसेक्यूटिव अकरेंसेस को बचा रहा है। इसको देखने के लिए इधर आ जाओ आप। ये जो सैंपल टेस्ट केस था, इसमें आप देखो किधर गया, अरे यार, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला अगर सैंपल टेस्ट के साथ ऑब्जर्व करो, तो इसमें देखो आपने स्वैप ऑपरेशन इन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के पेयर पे लगाया। अगर सेकंड ऑपरेशन नहीं होता तो आपको 2 इंटीजर्स उड़ाने पड़ते, इसमें से 2 को उड़ाना पड़ता, 3 को उड़ाना पड़ता, राइट। बट अब हमारे पास स्वैप ऑपरेशन है, तो आप देख सकते हो कि हमने इन दोनों पेयर को बचा लिया, मतलब दोनों पेयर में से कोई भी इंटीजर नहीं उड़ा, राइट। सो हमने अल्टीमेटली इस स्वैप ऑपरेशन की हेल्प से 2 इंटीजर्स को बचाया है, राइट। और यही हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स बचा सकते हैं, क्योंकि एक ही स्वैप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं इस अरे पर, राइट। सो सबसे पहले तो इस अरे ए डैश में हम क्या चेक करेंगे कि अगर कोई ऐसा 2 कंसेक्यूटिव पेयर्स
का अगर हमें कोई दो कंसेक्यूटिव पेयर हमें मिलते हैं इक्वल इंटीजर्स के, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा कि इस पर हम स्वैप ऑपरेशन लगा देंगे इस पेयर पर, और बाकी जितने भी बच गए इनके अलावा इक्वल वाले, तो हम उनमें से एक एक अकरेंसेस को उड़ा देंगे, राइट। और जो फाइनल अरे बनेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक केस तो ये हो गया पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केस। अब हो सकता है कि ये वाला केस एग्जिस्ट ही ना करता हो, मतलब हमें दो कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल इंटीजर्स मिले ही ना, तो हम ये वाला ऑपरेशन स्वैप ऑपरेशन इस पे नहीं लगा पाएंगे। अब हम देखते हैं कि अब दो तो इंटीजर नहीं बचा पाएंगे, राइट, ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैक्सिमम एक इंटीजर बचा सकते हैं। मैक्सिमम एक इंटीजर वो कैसे बचाओगे, वो ऐसे बचाओगे कि मान लेते हैं ऐसा कोई अक्रेंस एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कोई एक पेयर, सिर्फ एक पेयर मिलता है इक्वल इंटीजर्स का, तो हम क्या करेंगे, इसका जो नेबरिंग एलिमेंट है उससे स्वैप कर देंगे। और हम एक चीज़ चेक करेंगे कि स्वैप हम तभी कर पाएंगे जब ये जो थर्ड इंटीजर है, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये स्वैप करने जा रहे हैं, इससे जो थर्ड इंटीजर है ये 1 के नॉट इक्वल होना चाहिए। अगर 1 के इक्वल हुआ तो ये स्वैप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अगर ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम स्वैप कर देंगे। और इस केस में हम कितना इंटीजर्स बचा पाए, हम 1 बचा पाए। क्यों बचा पाए, क्योंकि अगर स्वैप ऑपरेशन नहीं होता ना तो ये हमें उड़ाना पड़ता, राइट, बट अब हमें नहीं उड़ाना पड़ा। ओके, सो इस केस में हम 1 बचा पाए। सो दो ही हम ये केस चेक करेंगे इधर। पहला केस क्या है, पहले देखें दो कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, दो कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या। अगर करते हैं तो हम आंसर जो होगा उसमें +2 कर देंगे, मतलब जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स में +2 कर देंगे, अदरवाइज हम +1 कर देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ दो ही केस चेक करने हैं हमें। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस सॉल्यूशन। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो लेट्स सी द कोड से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो हम सबसे पहले क्या करें, ए डैश अरे निकाल लेते हैं। ए डैश ए में ही स्टोर किया हमने, तो हम इधर क्या मेक श्योर कर रहे हैं, एक्स को तभी ऐड करेंगे जब या तो लेस देन अरे की साइज लेस देन 2 हो, या फिर लास्ट एलिमेंट एक्स के इक्वल ना हो, या फिर लास्ट सेकंड एलिमेंट इस एक्स के इक्वल ना हो। क्योंकि अगर लास्ट सेकंड एलिमेंट इक्वल हुआ तो मतलब अभी अगर एक्स फिर से आपने ऐड कर दिया तो इसका मतलब 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट आपके इक्वल हो जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते। मैक्सिमम 2 ही अकरेंस चाहते हैं हम कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की अरे ए में। तो बेसिकली ये हमने ए डैश अरे फाइंड कर ली। और इधर आप चेक कर रहे हो कि अगर साइज ऑफ ए 1 है या फिर साइज ऑफ ए 2 है, राइट, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे यहाँ से। अदरवाइज हम क्या चेक करेंगे, अदरवाइज हम चेक करते हैं ये वाले केसेस, दो केस है ना। पहले सबसे पहले टू कंसेक्यूटिव पेयर्स देखते हैं, अगर वो मिलते हैं तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, 2 ऐड कर देंगे। अदरवाइज हम ये चेक करेंगे। तो आ जाते हैं, हमने 2 बूलियन वेरिएबल ले लिए इधर, 2 कंसेक्यूटिव मिलता है हमें, राइट, इनिशियली फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया, या फिर 1 कंसेक्यूटिव भी मिलता है, मतलब एक ही पेयर मिलता है कंसेक्यूटिव 2 इक्वल इंटीजर्स का, जो कि स्वैप किया जा सकता है। तो हम इटरेट कर रहे हैं अरे पर, और हम आंसर में क्या करेंगे, आंसर इनिशियली एन ही ले लेते हैं। एन क्या है, इनिशियल साइज ऑफ द अरे। और अगर हमें कोई भी इंटीजर, 2 इंटीजर इक्वल मिलते हैं तो हमें पता है कि किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा, तो हम आंसर माइनस माइनस कर देते हैं। और एक प्रिजर्व भी कर पाएंगे लास्ट में कुछ एलिमेंट स्वैप की हेल्प से, वो हम इस फ्लैग की हेल्प से डिटरमिन करेंगे, राइट, वो हमने पहले देखा ही था। ओके, सो लेट्स से 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स वाली कंडीशन इधर चेक कर लेंगे कि अगर
कोई भी दो ए आई माइनस वन इक्वल हैं एंड ए आई माइनस टू और ए आई माइनस थ्री, दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स के पेयर अगर इक्वल हैं तो हम इस फ्लैग को ट्रू मार्क कर देंगे। दूसरा हम चेक करेंगे ये वन कंजिक्यूटिव वाला। वन कंजिक्यूटिव वाले में एक्चुअली 4 केस बन जाएंगे टोटल, है ना। ये हम एक्चुअली क्या चेक करें कि ए आई और ए आई माइनस वन इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इन दोनों को स्वैप करने के बाद ए आई कहाँ जाएगा, इन दोनों को स्वैप करने के बाद क्या होगा, ए आई माइनस थ्री जो है वो ए आई के नॉट इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, मान लेते हैं ए आई है ए आई माइनस वन, ये दोनों इक्वल हैं। अब इनको स्वैप करोगे आप टू और वन को, तो ए आई और ए आई माइनस थ्री ये भी नॉट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं इधर एक होता तो आपका फाइनल इधर भी एक होता तो ये वन वन गुड नहीं होता। तो हम वन कंजिक्यूटिव वाले पेयर के लिए अगर स्वैप के बाद भी चेक करेंगे कि ये गुड है या नहीं, तो इस केस में हम चेक करेंगे कि ए आई और ए आई माइनस वन इक्वल होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए इक्वल इंटीजर्स का, प्लस ए आई और ए आई माइनस थ्री नॉट इक्वल होना चाहिए। ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप स्वैप कर सकते हो। तो इस केस में हम वन कंजिक्यूटिव को ट्रू मार्क कर देंगे। दूसरा केस क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये दूसरा केस ये कि 3 1 1 2 3 2 ऐसा कुछ है। तो इस केस में अगर 3 एलिमेंट ही हैं इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द अरे में, तो भी हमारे लिए सही है, हम इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं इजीली, 1 3 1 2 3 2, राइट। सो ये भी एक वन कंजिक्यूटिव वाला केस वैलिड हो गया, मतलब वन कंजिक्यूटिव पेयर है और इसको स्वैप कर सकते हैं। तो वही चेक किया इधर, आई इक्वल्स टू 2 है एंड ए आई माइनस वन इक्वल है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यही है कि ऐसा कुछ वन कंजिक्यूटिव पेयर है एंड 2 एंड 3 ये एग्जिस्ट करता है, तो मतलब ये कंजिक्यूटिव पेयर है प्लस ये और ये अनइक्वल है। ओके, सो यही चेक किया है। ये वाला केस क्या है, बेसिकली ये पहले वाले दो केस के ही उल्टे हैं। ये वाला केस एंड में चेक कर रहा है एक्चुअली, क्या 4 3 1 1 लेट्स से 2 ऐसा कुछ है। तो लास्ट में 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं एंड ये वाला कंजिक्यूटिव एक कंजिक्यूटिव पेयर एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे इस केस में 1 2 1 इसको स्वैप कर देंगे। तो यही चेक कर रहे हैं कि लास्ट में 3 कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब आई प्लस टू इक्वल्स टू एन माइनस वन एंड ए आई और ए आई प्लस वन इक्वल हैं। तो इस केस में भी हम वन कंजिक्यूटिव को ट्रू मार्क कर देंगे। तो इधर हम वो केस चेक कर लेते हैं कि अगर हमें ये वाला केस मिलता है 2 कंजिक्यूटिव वाला, तो डेफिनेटली हम उसी पर स्वैप ऑपरेशन लगाएंगे और उस केस में हमारे 2 एलिमेंट्स कंजर्व हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे। अगर हमें ये केस नहीं मिलता तो हम वन कंजिक्यूटिव वाला चेक करेंगे कि वन कंजिक्यूटिव वाला केस अगर मिलता है, स्वैप वाला केस मिलता है, तो उस केस में हम 1 बचा पाएंगे, 1 इंटीजर बचा पाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। आंसर प्रिंट कर देंगे। सो दिस वाज इट फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। सो दिस प्रॉब्लम इज सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन ए मैट्रिक्स. So you are given a matrix of n rows and m columns. Initially all of its elements are equal to 0. You are also given 2 arrays of positive integers a and b. The elements in each array are strictly increasing. You may perform any number of operations, possibly 0. Each operation is of one of the following types. Choose a number c from array A and a row of the matrix. Set every element in this row equals to c. सेकेंड ऑपरेशन क्या है कि चूज ए नंबर डी फ्रॉम अरे बी एंड ए कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, सेट एवरी एलिमेंट इन दिस कॉलम टू डी. द ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑर्डर. यू मे चूज द सेम रो, कॉलम और वैल्यू मल्टीपल टाइम्स. The cost of a matrix is sum of all distinct numbers that occur in at least once. Find the maximum possible cost of this matrix. So the problem is simple, right? You are given 2 arrays A and B और आपके पास एक n क्रॉस m की मैट्रिक्स है और इनिशियली सारे एलिमेंट्स उसमें 0 है.
अब आपको क्या करना है ना, इस मैट्रिक्स को आपको फिल करना है कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करके। हर एक ऑपरेशन में आप दो काइंड के ऑपरेशन है, कोई भी एक काइंड का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। एक काइंड के पहला काइंड का ऑपरेशन क्या है कि उसमें आप कोई भी एक नंबर चूज करो अरे ए में से, और आप किसी एक रो को पकड़ो, उसमें सारे रो के एलिमेंट्स को आप सी से रिप्लेस कर दो। दूसरा काइंड ऑफ ऑपरेशन ये है कि आप कोई नंबर डी पिक करो अरे बी से, एंड देन यू नीड टू पिक ए कॉलम जे, राइट, और उस पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट्स हैं उनको डी से रिप्लेस कर दो, राइट। So these are the only two kind of operations you can apply, and ultimately your goal is to fill this array, fill this matrix, and ultimately you need to maximize the total possible sum of distinct elements from this matrix, right? Please note that you need to maximize the sum of distinct elements from the matrix. इसको देखते हैं कैसे करेंगे, कोई एग्जाम्पल टेस्ट केस लेते हैं, राइट। लेट्स से आपने ये वाला केस लिया, इसके लिए कैसे सोल्व करोगे इसको। इसमें क्या है कि आप n और m, n इक्वल्स टू 1 है, m इक्वल्स टू 3 है, तो आपकी मैट्रिक्स इस टाइप की होगी। इनिशियली इसमें सारे 0 0 हैं, तो आप पहला ऑपरेशन अप्लाई करोगे ना। पहले ऑपरेशन में क्या करोगे कि ये आपकी अरे ए है, राइट, और ये आपकी अरे बी है। तो आप क्या करोगे, अरे मैं क्या कह रहा हूं कि अरे बी में से 3 को पिक कर लो आप पहले ऑपरेशन में, और कॉलम थर्ड कॉलम में अप्लाई कर दो ये ऑपरेशन। तो ये क्या करेगा, थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट हैं उनको 3 से रिप्लेस कर देगा। तो थर्ड कॉलम में तो अब वर्टिकली एक ही एलिमेंट है ना, तो आप इसको रिप्लेस कर दिया। सेकंड ऑपरेशन में मैं क्या कह रहा हूँ, 2 को पकड़ो और सेकंड कॉलम में सारे एलिमेंट्स पर ये सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 2 से रिप्लेस कर दो। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 को पकड़ो और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स पर 1 से रिप्लेस कर दो। तो फाइनल अरे आपकी ये बनी। इसमें आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा सम ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। अब क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 3 + 2 + 1 = 6। ये आपका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा आप आंसर नहीं बना सकते, राइट, क्योंकि आपके पास एलिमेंट ही 1 2 एंड 3 हैं और तीनों आपने डिस्टिंक्टली ले लिए हैं इस मैट्रिक्स में। तो आपका 6 आंसर हो जाएगा फर्स्ट सैम्पल टेस्ट केस। अब आइए चलते हैं इस सैम्पल टेस्ट केस को लेते हैं। टू क्रॉस टू, इस सैम्पल टेस्ट केस में क्या है आपके पास, n = 2 m = 2, मतलब 2 क्रॉस 2 की आपके पास ग्रिड है और इनिशियली सारे एलिमेंट 0 हैं। पहला ऑपरेशन क्या करोगे आप, पहला ऑपरेशन अप्लाई करोगे। पहले ऑपरेशन में आप क्या अप्लाई करोगे, आप 4 को रखना चाहोगे, आप फाइनल अरे में 4 को फाइनल अरे में रखना चाहोगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए क्या करोगे, लास्ट रो को पकड़ो और इसके सारे एलिमेंट्स को 4 से रिप्लेस कर दो। 4 4 0 0। अब मैं चाहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, आप नोटिस करो इन सैम्पल टेस्ट केसेस में भी मैं सारे बड़े जितने भी लार्जर नंबर्स हैं उनको रखना चाहूँगा फाइनल मैट्रिक्स में, क्योंकि अल्टीमेटली माय गोल इज़ टू मैक्सिमाइज द सम ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। सो पहले 4 को पिक किया, इसको अरे में लेके फाइनल मैट्रिक्स में लेके आए। अब 3 को लेके आते हैं। 3 को कैसे लेके आओगे, 3 को ओबियसली 3 एक बी का एलिमेंट है, बी अरे का एलिमेंट है, तो बी अरे का एलिमेंट आप सिर्फ एक कॉलम में लगा सकते हो। तो आपने लास्ट कॉलम पकड़ा और उसमें लगा दिया, ये 0 है, लास्ट कॉलम में सारा 3 से रिप्लेस कर दिया आपने। अब मैं 2 पर आता हूँ, 2 को मेरे को 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 क्योंकि 2 बी का एलिमेंट है, 2 बी का एलिमेंट है, राइट। सो 2 बी का एलिमेंट है तो मैं क्या करूँगा, इसमें सारे एलिमेंट्स पर
ये एज इट इज रहेगा। फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 2 से रिप्लेस कर दिया, राइट। अब मेरा 4 चला गया, 4 तो मुझे चाहिए था, तो मैं 4 फिर से पकड़ूंगा, 4 पर ये ऑपरेशन लगा दूंगा। 4 पर क्या लगा दूंगा, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को 4 से रिप्लेस कर दूंगा। ये आ गया 4 4 2 3। अब मुझे नहीं लगता इससे बेटर आंसर बना सकते हो आप, क्योंकि आपका एक एलिमेंट तो, अब आप इससे बेटर नहीं बना सकते, क्योंकि आप टॉप n+m -n इतने ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट चूज कर सकते हो, है ना आपका, राइट। क्योंकि आप कोई भी और ऑपरेशन अप्लाई करके देख लो, इस पर एटलीस्ट 2 इंटीजर्स तो आपके इक्वल रहेंगे ही। तो यही आपका बेस्ट आंसर हो सकता है इसके लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 4 + 3 + 2, जो कि है आपका 9। और आप देख सकते हो कि यही आपका आंसर है इस सैम्पल टेस्ट केस का। तो चलो, अब ये आप बताओ कि आप ये समझ गए ना कि मैक्सिमम n+m-1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही बना सकते हो आप। कैसे, आप बोलोगे कि मान लो एक जनरल केस ऑब्जर्व करते हैं, आपके पास एक कोई बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है, अरे यार इससे ही कर लेते हैं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ना, काफ़ी मान लेते हैं n और m की वैल्यू काफ़ी बड़ी है। तो इसमें हम क्या समझना चाह रहे हैं, इसमें हम यही समझना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन दिस अरे, सिर्फ हम, ये आपकी नंबर ऑफ रोज हैं, n है आपके पास, ये नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास लेट्स से m है। तो हम इधर, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप ये 2 ऑपरेशन अप्लाई कर करके सिर्फ मैक्सिमम n+m-1 ही डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हो सकते हैं आपके। इतने इंटीजर्स ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। आप बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं इसमें? टोटल नंबर तो ऑफ कोर्स n×m होंगे, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, बट इतने n+m-1 ही हो सकते हैं डिस्टिंक्ट। वो कैसे होंगे कि आप सोच के देखो। हम क्या कर सकते हैं इस पर, हम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लो पहले हमने रोज, सारी रोज को रिप्लेस कर दिया ए के इंटीजर से, मतलब an-1 को इधर रख दिया, an-2 को सारों को इधर से रिप्लेस कर दिया, an-3 को इधर, an-4 को इधर, an-5 को इधर, राइट। तो अब क्या हो गया, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स n हो गए, n हो गए ना। प्लस अब आप क्या करोगे, सेकेंड टाइम में क्या करोगे, आप कॉलम्स को रिप्लेस कर दो। अब इधर bm-1 रख दिया, राइट, bm-2, bn-3, bn-4, और यहां तक रिप्लेस कर दिया। इसको नहीं करोगे क्योंकि इसमें तो आपके अरे के एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट वो तो चाहिए आपको, अरे ए के एलिमेंट्स हैं इसमें तो, क्योंकि वो तो डिस्टिंक्ट आपको चाहिए ही, n है जो। अब आपको b लास्ट के, आपने इन कॉलम्स को आपने b के एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया। लास्ट एलिमेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b, लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सेकंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b, थर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b, राइट। तो ऐसे रिप्लेस कर दिया। इससे आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने बचे, कितने मिले, m-1। आप दूसरा भी केस कर सकते थे, राइट। दूसरे केस में क्या कर सकते थे कि आप पहले इसमें क्या करते,
कॉलम्स फिल कर देते, सारे कॉलम्स फिल कर देते हो तो उसके केस में आपके m डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हो जाते, राइट। आपने सारे कॉलम्स को फिल कर दिया। अब आप पहले रो को छोड़ दो क्योंकि उसमें सारे b के एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे कॉलम्स को आप a से रिप्लेस कर दो। मतलब इधर आपने वही क्या, an-1 an-1 an-2 an-3 ऐसे ही। तो उस केस में आपने a के एलिमेंट्स कितने ले पाए, n-1। इस केस में भी तो दो ही केस हैं, या तो आप पहले, या तो आप a के a अरे के n एलिमेंट्स ले लो, इन दैट केस आपको b अरे के m-1 ही लेने पड़ेंगे। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि अरे a के आप n-1 एलिमेंट ले लो, राइट, और अरे b के m एलिमेंट्स ले लो, राइट। सो सिर्फ दो ही पॉसिबल केस हैं इधर, है ना। सो आप इतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले सकते हो। ओके, सो अब हमारा प्रॉब्लम क्या बच गया, अब हमारा प्रॉब्लम बच गया कि फाइनल अरे हमें मैक्सिमम बनाना है, फाइनल सम जो है मैक्सिमम बनाना है। तो आपके पास ये अरे ए है, अरे A1 A2 A3, राइट, एक्स इंटीजर्स हैं इसमें मान लो। फिर आपकी अरे बी है, B1 B2 B3 BY। अब हमारा गोल क्या है कि हमने मान लो, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है शायद कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो एक बार के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, राइट। मान लो ये है, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं और आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। अब क्या आपको क्या करना है ना, अब आपको दो केस सोचने हैं, या तो आप अरे ए में से n एलिमेंट उठाओ और अरे ए में से टॉप n एलिमेंट उठाओ, और अरे बी में से टॉप m-1 एलिमेंट उठाओ, और m-1 उठा रहे हो ना, आपको वही उठाने हैं जो इसमें अरे ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, राइट, डिफरेंट फ्रॉम अरे ए। तो उस केस में आप सम फाइंड कर लो। दूसरा केस क्या है कि आप अरे बी में से m एलिमेंट उठाओ, टॉप m एलिमेंट, और इसमें से n-1 उठा लो, राइट, टॉप n-1, और आप आंसर फाइंड कर लो। सो हमारे दो ही केस एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या हो गया, हमारा अल्टीमेट गोल ये हो गया कि हमें क्या चाहिए, हमें टोटल m+n-1 एलिमेंट्स उठाने हैं अरे ए में से और बी में से, सच दैट अरे ए में से आपने टॉप के x एलिमेंट उठाए, राइट, और अरे बी में से आपने y एलिमेंट उठाए। इस पे कंस्टेंट क्या है कि x लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, y लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए, और आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू n प्लस m-1 होना चाहिए। ये आपके तीन कंस्टेंट है, राइट। सो इसको, हाँ, प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल बन गई। अब आपके पास ये अरे ए दे रखी है, बी दे रखी है, आपको n+m-1 एलिमेंट उठाने हैं। मान लेते हैं कि आपने ए में से x एलिमेंट उठाए, y में से y उठाए, तो इन पे कंस्टेंट ये है, और टोटल एलिमेंट्स आप x प्लस वाई आपका n+m-1 होना चाहिए। और आपको क्या करना है, सम ऑफ दीज इंटीजर्स, और ये आप मेक श्योर करोगे कि जो आपने x उठाए हैं ना अरे में से, और जो y उठाए हैं, ये डिसजॉइंट है। मतलब कोई भी इनमें से इंटीजर्स इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्या चाहोगे ना, आप ऐसे ही एलिमेंट उठाने चाहोगे जो डिस्टिंक्ट होंगे, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपने इसमें से कोई, मान लो आपने एलिमेंट 5 उठा लिया, तो इसमें से अब बी में से 5 नहीं उठाओगे, राइट। ये आपको मेक श्योर करना है। एक्स ओनली, एक्स और वाई दोनों डिसजॉइंट ही होने चाहिए सेट, जो नंबर्स उठा रहे हो वो डिसजॉइंट होना चाहिए। तो आपका सम आंसर क्या हो जाएगा,
आपका आंसर यही हो जाएगा, सम ऑफ दीज इंटीजर्स, राइट, पिक्ड अप इंटीजर्स। तो चलिए कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट हम ऐसे करते हैं कि दोनों की हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या करती है, मैक्स हीप होती है, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करके रखती है एलिमेंट को। अब आप क्या करोगे, काइंड ऑफ 2 पॉइंटर्स अप्रोच ही अप्लाई करोगे इस पर। आप चेक करोगे कि टॉप के 2 एलिमेंट अगर इक्वल हैं, राइट, अगर इक्वल नहीं है, लेट्स से ए का एलिमेंट ग्रेटर है बी से, तो आप क्या करोगे, ए में से एक एलिमेंट को उठा लोगे, अगर और ए में से पॉप कर दोगे उस एलिमेंट को। अगर बी में बड़ा है तो आप बी वाला उठा लोगे, राइट, और बी में से पॉप कर दोगे। अगर दोनों में इक्वल हैं तो आप क्या करोगे, दोनों के एलिमेंट्स को पॉप कर दोगे और आप एक काउंट स्टोर कर लोगे वेरिएबल। क्या फ्यूचर में आप पता लगा पाओ कि सिर्फ हमने एक को ही डिक्रीज करना था, कि मान लो 4 और 4 एग्जिस्ट करता है, टॉप के एलिमेंट मान लो दोनों हैं 4 और 4, अरे ए में भी बी में भी। अब आप 4 उठा लिया, आप आंसर में तो इसको ऐड कर दो, बट आप एक काउंट लेके चलो, काउंट 1, है ना, कि हमने पहले कोई एक इक्वल एलिमेंट आया था, बट हमने सिर्फ ये वाला जो 4 है ना, सिर्फ एक में से ही उठाना था। ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे जब भी हम कंस्टेंट पे आएंगे कि x लेस देन इक्वल्स टू n है या y लेस देन इक्वल्स टू n है, राइट। सो लेट्स सी द कोड। अगर आपको समझ में नहीं आया ये 2 पॉइंटर अप्रोच हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो कोड से देख लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो हम क्या करें, nm और xy को इनपुट में लिया और 2 प्रायोरिटी क्यू ले ली, a और b। प्रायोरिटी क्यू में इस एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया। अब हमने एक आंसर ले लिया, आंसर इक्वल्स टू 0। आंसर क्या स्टोर करेगा, सम ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। एक एक्स्ट्रा स्टोर कर लिया। एक्स्ट्रा क्या है, यही है कि हमारे पास 2 इक्वल एलिमेंट आते हैं, तो हम काउंट की जगह इसको एक्स्ट्रा बोल देता हूं। एक्स्ट्रा क्या था कि भाई हमने एक एक्स्ट्रा इंक्लूड करके रखा है इसमें, ओके। एक्स्ट्रा लेके चल लेंगे कि जब भी 2 एलिमेंट इक्वल आएंगे तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा हम पिक करें, तो हम इसको फ्यूचर के लिए छोड़ देंगे कि भाई पहले कोई 2 इक्वल एलिमेंट आया था, उसमें से एक तो ले लिया था, अब हमने उस टाइम डिसाइड नहीं किया था कि कौन से एलिमेंट, मतलब कौन सी अरे में से उठाना है, तो ये हम बाद में डिसाइड करेंगे जब कंस्टेंट पे आएंगे कि ए एम्प्टी हो गया, बी एम्प्टी हो गया इन दैट केस। सो हम चलो इसको देख लेते हैं। और इनिशलाइज आई और जे को कर दिया, है ना, -1, आई इक्वल्स टू -1, जे इक्वल्स टू -1। आई और जे क्या है, आपके पॉइंटर हैं, आई और जे पॉइंटर आपके करस्पॉन्डिंग टू अरे ए और बी। हमने कितने एलिमेंट्स उठा लिए हैं इसमें से, राइट। सो आई और जे एक्चुअली i+1 और j+1 उठा लिए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो हाँ चलते हैं, हमें एक फॉर लूप लगा दिया हमने, काउंट इक्वल्स टू 0 to n+m-1, ओके। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई हमें बस n+m-1 एलिमेंट उठाने हैं टोटल, और हर एक इस लूप में हम सिर्फ एक एलिमेंट उठाएंगे, या तो a में से उठाएंगे या b में से उठाएंगे। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर a एम्प्टी है, मतलब a में से कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो आप ऑफ कोर्स b में से ही उठाओगे, अब तो आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं। तो आप चेक करोगे कि अगर b एम्प्टी नहीं है एंड j+1 इज लेस देन m+ एक्स्ट्रा। अभी एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि हमने पहले कोई 2 एलिमेंट उठा लिए थे a में से और b में से, राइट। अब क्योंकि a तो एम्प्टी हो गया, तो हम क्या करेंगे ना, हम एज्यूम करेंगे कि हमने वो एलिमेंट बस a में से उठाया था, राइट। सो वही कंडीशन चेक कर ली। अगर ऐसा है तो हम आंसर में टॉप एलिमेंट को ऐड कर देंगे और टॉप एलिमेंट को पॉप कर देंगे b से, और j को इंक्रीज कर देंगे a से। सिमिलरली हम b को चेक करेंगे, अगर b एम्प्टी है तो ऑफकोर्स a में से उठाएंगे, a में से उठा लिया एलिमेंट और a को 1 से बढ़ा दिया। अदरवाइज हम चेक करेंगे कि अगर a डॉट टॉप इज ग्रेटर देन b डॉट टॉप, राइट, a का टॉप एलिमेंट अगर ग्रेटर देन b का टॉप एलिमेंट है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम करेंगे कि आंसर में टॉप एलिमेंट
ऑफ कोर्स ए में से उठाएंगे, हम ए में से उठाएंगे, ए में से उठा लिया, राइट। एलसीएफ हमने चेक किया कि i+1 इज लेस देन n प्लस एक्स्ट्रा। इसका क्या मतलब है, i+1 लेस देन n का क्या मतलब है कि भाई ए में से उठा सकते हैं, उठा लिया। अब क्या आता है, i+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n वाला केस हो गया, जो कि इधर आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे अगर i+1 इज लेस देन n प्लस एक्स्ट्रा, इसका हम क्या मतलब क्या चेक करें कि i में से हमने n एलिमेंट्स उठा लिए, राइट। अब हम देख रहे हैं कि और उठा सकते हैं क्या, वो कैसे चेक करोगे कि हम चेक कर लें एक्स्ट्रा वेरिएबल। अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि हमने पहले कुछ एलिमेंट्स उठाए थे, उनमें से हमने ए और बी में से दोनों में से उठा लिया था, बट वो एलिमेंट सिर्फ एक अरे में से उठाना था हमें। तो हम इधर अज्यूम कर लें कि वो सिर्फ बी में से उठाना था, ए में से नहीं उठाना था। तो एक्स्ट्रा को एक से डिक्रीज कर दिया, राइट। और वो ये करंट एलिमेंट हम ए में से उठा लेंगे, राइट। एल्स वाला केस क्या हो गया, एल्स वाला केस यही बच गया कि ए में से तो हम उठा ही नहीं पाए, ए में से उठा नहीं पाए तो बी में से उठा लेंगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला केस भी वेरी सिमिलर टू अबव केस है कि अगर बी का टॉप एलिमेंट ग्रेटर है तो बी में से उठाना चाहेंगे सबसे पहले, बी में से नहीं उठा सकते, मतलब j+1 लेस देन m है, तो हम एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करेंगे कि एक्स्ट्रा कोई पहले दो इक्वल एलिमेंट उठाए थे क्या। अगर वो उठाए थे तो बी का ये एलिमेंट उठा लेंगे और एक्स्ट्रा को एक से डिक्रीज कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, बी में से हम उठा ही नहीं सकते, तो ए में से उठा लेंगे। ये केस क्या आता है, ये केस आता है जब दोनों टॉप एलिमेंट इक्वल हो। अब इधर ध्यान से समझना, अगर अभी भी आपको ये एक्स्ट्रा वेरिएबल वाला केस समझ में नहीं आया तो ये केस क्या है, ये केस है आपका जब दोनों एलिमेंट इक्वल हों आपके टॉप एलिमेंट। अब इधर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम ए में से उठाएं या बी में से, तो हम इधर क्या करेंगे ना, हम स्मार्टली एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके चल रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम दोनों में से उठा लेंगे, मतलब आई को भी एक से बढ़ा देंगे, जे को भी एक से बढ़ा देंगे। इधर हमने क्या जूम कर लिया, हमने इन दोनों एलिमेंट को उठा लिया, ए में से उठा लिया, बी में से उठा लिया, राइट। और सिर्फ आंसर में सिर्फ एक ही ऐड करेंगे, एक का, और हमने दोनों में से ये एलिमेंट पॉप करा दिया और एक्स्ट्रा वेरिएबल को एक से बढ़ा दिया। अब ये एक्स्ट्रा वेरिएबल इधर काम आ रहा है, इधर हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो केस बनाया था इसमें से कौन सी अरे में से उठाना था हमें, कौन सी क्यू में से उठाना था, ए और बी में से, तो ये इधर काम आ रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। आंसर हम लास्ट में प्रिंट कर देंगे। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, सो लेट्स meet in the next video. Until then, have a nice day. Thank you.